एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। इससे पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये डिक्टेशन टाइपिंग डिक्टेशन रहेगी एंड जिन स्टूडेंट्स की स्पीड कम है, शुरुआती स्टेज में बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और स्ट्रोक्स बना लेते हैं, उनके लिए ये डिक्टेशन है। ओके, तो अटेंड करें और जिनकी स्पीड है वो टाइपिंग के लिए एज अ टाइपिंग यूज़ करें डिक्टेशन को, ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, और जो फास्ट स्टूडेंट्स हैं, फास्ट जिनकी स्पीड है, उनके लिए डिक्टेशन दिया जाता है 80 वर्ड पर मिनट, 85 वर्ड पर मिनट फ्लक्चुएट डिक्टेशन एंड उसके बाद 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन, 105 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन फ्लक्चुएट डिक्टेशन वो भी रहता है। तो सेशन को ज़रूर अटेंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग स्टूडेंट्स एंड शॉर्ट हैंड वाले लो स्पीड वाले स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। स्टार्ट। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, the most dramatic event of the last year and perhaps the most significant in the history of free India was the underground nuclear explosion. The President's address has taken due note of this event, and the President has rightly congratulated our nuclear scientists and engineers on this important achievement. However, a serious omission in the President's address is that he made no mention of the hundreds of other scientists who are working in equally important fields such as agriculture and fisheries. Particularly this year, when agriculture has become the whole pivot of our national progress, I would have liked the President to have made at least a mention of those dedicated scientists and technologists who have been doing brilliant work for the development of our countryside. Whenever one visits an agricultural research institute in any part of the country, one is impressed by the dedication and energy of our young scientists engaged in doing the most advanced research in agriculture, dairy, fisheries, soil research, reclamation,
of desert areas, forestry, all of which are crucial to our development. At the same time, one gathers the impression that there is a great deal of frustration in our scientists today on account of lack of encouragement and the poor conditions in which they often have to work. Atomic scientists are perhaps somewhat better looked after than the other scientists, but on the whole, we cannot say that we have treated our scientists very well. Even today, after all the advance we have made in science, I feel that our scientists have not received the appreciation that they deserve. The majority of them are still treated just like functionaries in a government department. Poor salaries, indiscriminate transfers, promotion of people merely according to seniority and not on basis of merit or special experience. These are the complaints that I have heard from scientists whenever I visited any of our leading scientific institutions. I suggest, sir, that the time has come when we should not only raise the prestige of our scientist community but also substantial improve their material rewards and conditions of work. When I say material rewards, I do not mean just salary. More important is the kind of working and living conditions we provide for the scientist, how far we can reduce their domestic worries so that they can concentrate on their work. It should not be beyond the means of our government to provide our scientists cheap housing, special educational facilities for their children, concessional travel facilities, and so on. Sir, in almost every socialist country, particularly in the Soviet Union, scientists are treated as the cream of the society. In India, if we look around, who are the elite of our society? Contractors, exporters, advertising executives, and film stars. When you think that, after all, what our exporters and businessmen sell are largely the products of our brilliant research. It seems great injustice that those who sell the products should get most of the benefit
and very little goes to those who have developed the products. Therefore, sir, it all comes down to the question of the kind of value which we have to set in our society. Unless we make a radical change in our system of values and priorities, our progress will continue to be lopsided and hazard as it has been in recent years. It has become more evident now than ever that only through advanced science and technology we can improve the conditions of the vast masses of our people who live in the rural areas. While I do not deny that traditional occupations and cottage industries should continue to be an integral part of our rural life, we can at the same time transform the economy of our rural areas by bringing modern science into these regions. Rural electrification, medical care, schools, modern methods of agriculture, cheap housing, dairies, and fisheries. All these things can be brought to the rural areas if we make the best use of our scientists and if we organize our effort in such a way as to spread scientific knowledge to the rural population and also provide them facilities to use this knowledge. Sir, much of the work of our agriculture scientists has not so far spread to the village. Sir, it is disappointing to see that the President's speech is set in a conventional mold. Many of the new ideas that have been discussed in the last year have failed to get a mention, while the importance of fertilizers, power, steel, coal, and oil is mentioned. I do not see any reference to the use of solar energy, wind power, and gobar gas. I do not think, sir, the dignity of the presidential address would have been in any way impaired by the mention of gobar or the conversion of savage into useful manure. These, I submit, are the new tools by which we can raise the standard of the life of our people living in our villages. Sir, 80% of this country
population lives in villages, and a majority of them are landless, laborers, and marginal farmers. Out of this 80%, that is 70 crores of rural population, more than 30 crores are landless laborers. They live below the poverty line. Really speaking, there is no legal provision for their well-being and welfare. The urban labor is less than 10 crores, and the government has taken many steps and measures for their well-being and upliftment. Sir, I would like to narrate some of the measures taken by the government for the welfare of the urban labor. There is an act governing industrial relations and disputes. There are workers' committees, joint management councils, National Commission on Labor, etc. The government has also taken many steps for societal security like the Employees State Insurance Scheme, Employees Provident Fund, Family Pension, Maternity Benefits, etc. For this industrial and urban labor. There is also the Central Board of Workers' Education, the objective of which is to create a well-informed and responsible labor force, capable of organizing and running trade unions on a sound basis. All these measures are taken for the benefit of the industrial labor, mine labor, and dock labor workers. Stop. तो ये रही डिक्टेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल। जैसे कि ये टाइपिंग स्टूडेंट्स के लिए है और जो लो स्पीड जिनकी शॉर्ट हैंड की है उनके लिए है। तो सभी स्टूडेंट्स, दोनों जो जिनकी स्पीड है उनके लिए टाइपिंग बेस्ट है। ठीक, ये इस सेशन को लेकर, और जो लो स्पीड में शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, अभी न्यू सीख रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रोक्स के लिए और उनकी स्पीड के लिए इन्हेंस करने के लिए ये सेशन बेस्ट है। तो बोथ टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा सेंटेंस में कौन सा ग्रामर रूल लगा हुआ है और कौन सा टेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ये टेंस देखेंगे और जो मीनिंग्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग उनको एक्सप्लेन करेंगे, और कौन सा सब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडवर्बल फ्रेज है। ये इस टाइम के एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अटेंड करिए सेशन को शुरू से
शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग करके उसके बाद ये भी अटेंड करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, छोड़ के नहीं जाना है किसी स्टूडेंट्स को। चलिए स्टार्ट करें। जैसा कि ये स्पीड 45 से शुरू होकर ये स्पीड 50 और 58, ठीक, 50 वर्ड पर मिनट और 55 वर्ड पर मिनट एंड 58 वर्ड पर मिनट तक ये फ्लक्चुएट डिक्टेशन गई है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 से शुरू हुई है, ठीक है, 45 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन इसको कहेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो। देखिए फर्स्ट लाइन, मिस्टर वाइस चेयरमैन सर द मोस्ट। अब कहीं भी सेंटेंस में मोस्ट आ जाएगा ना, तो उसके पहले द आर्टिकल फिक्स है, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक। द मोस्ट ड्रामेटिक, अब ड्रामेटिक वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक। TIC जिस भी वर्ड में लग जाएगा वो नाउन कहलाएगा, तो ड्रामेटिक इवेंट, ड्रामेटिक। अब देखिए द मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट, ड्रामेटिक, अब यहाँ पर नाउन के पहले ड्रामेटिक लगा है, मतलब ड्रामे की तरह एक सीन दिखाया गया, ठीक है। ड्रामेटिक मतलब ड्रॉ करके, तो उसका क्या मतलब है कि ये है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले लगा हुआ ना, इवेंट है नाउन, नाउन के पहले ड्रामेटिक इज अ एडजेक्टिव और फिर उसके पहले आर्टिकल द, ठीक। ऑफ द लास्ट, अब जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट कुछ भी आ जाए तो हमेशा द का यूज़ करते हैं, द लास्ट, ओके। परहैप्स द मोस्ट, अब देखिए मोस्ट जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट आ जाए या सुपरलेटिव डिग्री कोई बिगेस्ट ऐसे आ जाए तो द का यूज़ होता है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया वॉज द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। अब इन प्रपोजिशन है, उसके पहले द आर्टिकल का यूज़, हिस्ट्री इज़ अ नाउन, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ इतिहास, हिस्ट्री को क्या कहते हैं, इतिहास। ऑफ फ्री इंडिया, अब वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री, तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब, ओके। तो क्या लगा है, वॉज द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, ओके। तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस, प्रेसिडेंट का एड्रेस, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस कहीं भी लगा हो तो उसका मतलब होता है संबंध बताता है ना, कि का, ठीक है। हैज़ टेकन, अब हैज़ टेकन ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ टेकन ड्यू नोट ऑफ दिस इवेंट एंड द प्रेसिडेंट हैज़ राइटली। अब देखिए प्रेसिडेंट के पहले द आर्टिकल, क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड मेन सब्जेक्ट को फॉलो करेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब अगर के आगे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब
अब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, क्योंकि सिंगुलर है मेन सब्जेक्ट, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर रहेगी, हैज़। ठीक, अब वर्ब के बाद जो भी ly से रिलेटेड सेंटेंस वो वर्ड्स लगते हैं तो उन्हें कहते हैं एडवर्ब। वर्ब के बाद क्या फॉलो होता है, एडवर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज़ राइटली कॉन्ग्रेचुलेटेड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब एंड मेन वर्ब कॉन्ग्रेचुलेटेड आवर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है। ठीक, आवर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑन दिस इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। अब कोई ओकेजन है इसलिए ऑन प्रपोजिशन का यूज हुआ है। ठीक है, however a serious omission, however a serious omission। अब देखिए however माने जैसा कि, फिर हालांकि, however मतलब हालांकि, जैसा कि, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। a serious, a is article, serious is adjective and omission is noun, omission in the president's address। omission मतलब कुछ कुछ कमी। ओके, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, प्रेसिडेंट्स के एड्रेस में, प्रेसिडेंट के एड्रेस में इज दैट ही मेड नो मेंशन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, जो कि उन्होंने अपने एड्रेस में 100 अदर साइंटिस्ट को मेंशन नहीं किया था। हु आर द वर्किंग, अब देखिए हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लगा हुआ है। ठीक है, तो किसको, हु किसको इंडिकेट कर रहा है, साइंटिस्ट को। ठीक है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनको इंडिकेट कर रहा है, उनको उनका रिलेशन बना रहा है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो हु अब के बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, तो साइंटिस्ट को फॉलो करेगा हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि साइंटिस्ट जो है प्लूरल नाउन है, एज एन प्लूरल नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, तो प्लूरल नाउन किसको फॉलो करेगा, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा आर। ठीक, अब आर वर्किंग, आर वर्किंग मतलब अभी तक काम कर रहे हैं जो साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक, आर वर्किंग इन इक्वली इम्पॉर्टेंट फील्ड, जो कि इक्वल उसी फील्ड्स में काम कर रहे थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक, सच एज जैसा कि, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, किस कौन कौन से, एग्रीकल्चर और फिशरीज डिपार्टमेंट में। पर्टिकुलरली दिस ईयर व्हेन एग्रीकल्चर हैज़ बिकम, अब व्हेन एग्रीकल्चर इज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक, इसको फॉलो करेगा हेल्पिंग वर्ब जो कि सिंगुलर है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैज़ बिकम, हैज़ के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक, बिकम, देखो बिकम, बिकेम और बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक, जैसे कम, केम, कम होता है ना, केम सेकेंड फॉर्म और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म की तरह कम थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। ठीक है, तो बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म। द होल पाइवट ऑफ आवर नेशनल प्रोग्रेस, होल पाइवट मतलब जो जितनी भी ओवरऑल प्रोग्रेस हुई है उसका पूरा एक ब्यौरा। ठीक, पाइवेट। आई वुड हैव, अब देखिए ये फ्यूचर, वुड हैव लाइक्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई वुड हैव लाइक्ड द प्रेसिडेंट टू हैव, आई वुड हैव, वुड के बाद अगर सिर्फ वुड रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर वुड के बाद हैव आ गया, ठीक, और वुड के साथ हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता है।
कहीं कहीं जैसे कि न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर एग्ज़ाम हॉल में किस तरह स्ट्रक्चर देकर पूछा जा रहा है। वुड के साथ हैज़ भी लगा देते हैं तो ये गलत होता है। हमेशा वुड के साथ हैव ही आता है। वुड, हैव, कुड हैव, माइट हैव, तो हमेशा हैव आता है। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। द प्रेसिडेंट टू क्या है? प्रपोजिशन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव। ओके, made at least a mention of those dedicated scientists and technologists who have been। अब साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट जो कि प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, जो कि किसके लिए यूज़ हुआ है? ये मेन सब्जेक्ट साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, तो जो कि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या फॉलो करेगा? प्लूरल वर्ब हैव बीन डूइंग ब्रिलियंट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री साइड। हैव बीन डूइंग, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया ना। ओके, अब नेक्स्ट, whenever one visits an agricultural research institute in any part of the country, one is impressed by the dedication and energy of our young scientists engaged in doing the most advanced research in agriculture, dairy, fisheries, soil research। ठीक, whenever one visits an agriculture research, तो वन है सिंगुलर, उसके बाद वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। ठीक है, इम्प्रेस्ड। अब वन इज इम्प्रेस्ड, ये कौन सा सेंटेंस किस में जा रहा है? एक्टिव वाइज है कि पैसिव वाइज? इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हमेशा पैसिव वाइज में सेंटेंस रहेगा। ओके, देखो, वन इज इम्प्रेस्ड बाय द डेडिकेशन एंड एनर्जी ऑफ यंग साइंटिस्ट। ठीक, नेक्स्ट, at the same time one gathers the impression that there is a great deal of frustration मतलब very bad feeling, okay, in our scientists today on account of। अब देखिए ये फ्रेज है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं इसको। ऑन अकाउंट ऑफ, हमेशा ऑन अकाउंट ऑफ होता है। ऑन अकाउंट फॉर भी लिख देते हैं लेकिन वो गलत होता है। इन अकाउंट ऑफ भी लिख देते हैं। ठीक, तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसको लर्न रखना है। ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ इंकरेजमेंट and the poor conditions in which they often have to work। अब in which they often have यहाँ पर अब कहेंगे आपकी they often have जो है वो have वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो नहीं, ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, दे प्लूरल, उसके बाद ये है ऑफन एडवर्ब। ठीक, मेन वर्ब के पहले आई है। ठीक है, और हैव मेन वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट को फॉलो कर रही है, प्लूरल प्रोनाउन को फॉलो कर रही है। टू वर्क, टू प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब जो कि ऑब्जेक्टिव केस नाउन। ठीक, atomic scientists are perhaps somewhat better looked after than the other scientists, but on the whole we cannot say that we have treated। देखिए, we have treated, we के बाद has भी लगा के दे देते हैं जो कि गलत रहेगा। वी के बाद क्योंकि आई वी यू दे
के साथ हमेशा हैव, प्लूरल फॉर्म हैव लगता है। अब यहाँ पर देखिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ये सेंटेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। आवर साइंटिस्ट वेरी वेल, इवन टुडे आफ्टर ऑल द एडवांस वी हैव, अब देखिए वेरी वेल है जो, तो ये एडजेक्टिव है वेरी, और वेल एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव दोनों हो सकते, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो वेरी वेल इज अ एडजेक्टिव। हैव मेड इन साइंस आई फील दैट आवर साइंटिस्ट हैव नॉट रिसीव्ड, आवर साइंटिस्ट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट जो कि फॉलो करेगा प्लूरल वर्ब को, हैव। नॉट रिसीव्ड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस कहीं जाएगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट वर्ड लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि आगे या उसके पीछे लगा दिया, बिल्कुल सही इस तरह ऐसे लगेगा। द एप्रिसिएशन दैट दे डिजर्व, द मेजॉरिटी ऑफ देम, देखिए द मेजॉरिटी ऑफ देम, तो द मेजॉरिटी जो कि एक मेजॉरिटी मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, ये मेजॉरिटी, तो इस मेजॉरिटी को हम नाउन मतलब मेन सब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, देम कंसीडर करेंगे, देम को, ठीक है। तो देम के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी, देम आर, ठीक। द मेजॉरिटी, अगर देखिए द मेजॉरिटी है तो मतलब एक यूनिट है, बहुत सारे का ग्रुप है एक मेजॉरिटी, तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल आर का यूज़। स्टिल ट्रीटेड, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है पैसिव वाइज में सेंटेंस जा रहा है। जस्ट लाइक फंक्शनरीज इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुअर सैलरी डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब उसे अस्पृश्यता में रखना, मतलब बहुत दरकिनार कर देना, ठीक है, दरकिनार कर देना, कि बहुत कम उसे ट्रांसफ़र, उसे पुअर सैलरी, प्रमोशंस, दरकिनार कर देना उन सब चीज़ों से, बिल्कुल नेग्लिजेंस, डिस्क्रिमिनेट मतलब नेग्लिजेंस। merely according to seniority and not on basis of merit or special experience, these are the, अब दिस अगर आया होता तो इज लगता, ठीक, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन दीज और दोज के बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगता है, ठीक। दीज आर द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स नाउन है, उसके पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। दैट आई हैव हेयर्ड, आई हैव हेयर्ड मतलब आई क्या है, यहाँ पर आई है मेन सब्जेक्ट, जो कि क्वालिफाई किसको करेगा, हेल्पिंग वर्ब को। हैव प्लूरल फॉर्म में लगेगा, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग आई वी यू दे के साथ जैसा बताया था हैव प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है, हैज़ नहीं यूज़ होता। अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो होगी मेन वर्ब की, तो हेयर्ड। फ्रॉम साइंटिस्ट, whenever I visited any of our leading scientific institution, I suggest, sir, that the time is a singular subject. क्या फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब हैज़। अब हैज़ हैव के बाद बताया था मैंने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ठीक है। हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज़ के बाद कम इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन
वी शुड नॉट। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था ना, शुड वुड के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अगर हैव होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, लेकिन अकेले शुड वुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट ओनली, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का, वी शुड नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का पेयर रहता है। देखिए बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगता है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी सेंटेंस में एग्जाम सेंटर में दिया हुआ है एग्जाम में, नॉट ओनली रेज द प्रेस्टीज ऑफ आवर साइंटिस्ट कम्युनिटी, तो उसके बाद जो सेंटेंस जुड़ेगा, ठीक, कंडीशनल सेंटेंस, तो बट ऑल्सो से जुड़ेगा हमेशा, ठीक है। सब्सटेंशियली इम्प्रूव, सब्सटेंशियली मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, improve their material rewards and conditions of work. When I say material rewards, I do not mean, I के साथ do लगेगा, ठीक, does नहीं लगेगा, do not, do ही लगेगा। mean क्योंकि do बेस फॉर्म है जो कि प्लूरल होती है, हमेशा वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, ये ध्यान रखिएगा। एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंट सिंगुलर, सो फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज द काइंड ऑफ वर्किंग, द आर्टिकल काइंड इज अ नाउन, ऑफ वर्किंग प्रपोजिशन, उसके बाद वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस, वर्किंग इज अ सब्जेक्टिव केस जो कि नाउन है, एंड लिविंग कंडीशंस ऑल्सो, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है ये, एंड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये है कंजक्शन, कंजक्ट कर रहा है ना दोनों को। वी प्रोवाइड, अब वी आई वी यू देख साथ, जैसे मैंने बताया था बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल रहता है, तो प्रोवाइड, वी प्रोवाइड, ठीक। फॉर द साइंटिस्ट हाउ फार वी कैन रिड्यूस, वी कैन कुड वुड के साथ हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर डोमेस्टिक वरीज so that they can concentrate on their work। अब दे आई वी यू दे के साथ कैन तो लगेगा, बट कैन के साथ कैन कुड वुड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कैन कुड वुड के साथ हैव रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कैन अकेले है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑन देयर वर्क, ऑन प्रपोजिशन, उसके बाद प्रोनाउन देयर जो कि उनका एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक, एंड नाउन के पहले लगा हुआ है, एंड वर्क इज़ अ नाउन, वर्क हमेशा नाउन, ठीक। और अगर वर्क्स आ जाएगा तो वो क्या होगा, वर्क्स में जैसे कि आप कोई काम है उसको अगर प्लूरल बनाना चाहें तो प्लूरल कभी नहीं बनेगा, वर्क्स अगर रहेगा तो हमेशा वो रचनाएं, मतलब उसका अलग मीनिंग चला जाएगा, और वर्क मतलब कोई काम, ठीक। आई होप ये सेशन वेरी इम्पॉर्टेंट हो आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैंने पूरा एक 400 वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें भी ऐसे ही कराऊंगी सब में, और जितना भी मैंने बोला हुआ है डिक्टेशन वो ज़रूर लिखें। वो टाइप के स्टूडेंट जिनकी स्पीड है वो टाइपिंग के लिए अपना इम्प्रूव करें, लिखें, और जिनका शॉर्ट हैंड में सीख रहे हैं बच्चे, जो शुरुआती स्टेज में बच्चे हैं, वो ज़रूर लिखें, ठीक है, वो भी लिखें, दोनों में इम्प्रूवमेंट हो, एंड प्रैक्टिस करें। एंड शॉर्ट हैंड जो जिनकी स्लो स्पीड है वो कम से कम 5 टाइम्स इस सेशन के शॉर्ट हैंड को लिखें, ताकि आप में इम्प्रूवमेंट हो और जल्दी से जल्दी आप 80 वर्ड पर मिनट पे हैं, 80 वर्ड पर मिनट के बाद 100 वर्ड पर मिनट, एंड 105 फ्लक्चुएट डिक्टेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस दिए जाते हैं इस चैनल पर। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, एंड सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर करें, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करें अपनी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। एंड जो कि मैं हर सेशन में बोलती हूँ, ये स्लोगन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लिया जिसने वो तो फिर उसको सक्सेस मिल गई, ठीक। तो ठीक, लाइक शेयर करें, एंड थैंक्स।